हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सिफ्टेक सिंप्लीफाइड। मेरा नाम इमरान अजीज है और मैं आपको अपने चैनल पे खुशामदीद कहता हूं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एमसीक्यू सीरीज में पार्ट 10 की, जिसमें आज हम 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके लिए लाए हैं। कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में से ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि गेट एग्जाम्स या पीएमपी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकते हैं। सिविल इंजीनियर्स को भी सपोर्ट करेंगे। सो बढ़ते हैं अपनी वीडियो में, फर्दर प्रेजेंटेशन शेयर करेंगे जिसमें आपको ये क्वेश्चंस हम एक्सप्लेन करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। सो पार्ट 10 जो है हमारा, उसमें 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं जो कि स्पेशली आपके लिए डिजाइन किए गए हैं ताकि आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, जॉब इंटरव्यूज या एनी सॉर्ट ऑफ यूनिवर्सिटी टेस्ट के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सकें। सो क्वेश्चन नंबर 226 इज the time which results in the least possible construction cost of an activity is known as option A normal time, option B slow time, option C crash time, option D standard time. The time which results in the least possible construction cost of an activity is option B slow time. So B जो है वो correct answer है slow time. 227. What should be the function of an organization? Option A coordination of various departments. B to prepare structure of organization. C to monitor various activities and progress. D all of the above. Organization function का क्या मतलब है? उसमें हमने coordination करनी है between various departments एक ही organization के अंदर, या multiple departments इंट्रा डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन भी इसी के तहत की जाती है। और टू प्रिपेयर स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टू मॉनिटर वेरियस एक्टिविटीज एंड प्रोजेक्ट्स प्रोग्रेस। सो डी इज द करेक्ट आंसर विच इज ऑल ऑफ द अबव। 228 सेलेक्ट फ्रॉम द बिलो प्रिंसिपल्स ऑफ आइडियल ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन ए यूनिटी ऑफ जॉब असाइनमेंट, बी स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, सी सेपरेशन ऑफ वर्क, डी ऑल ऑफ द अबव। सो जो अच्छे ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके अंदर ये तमाम प्रिंसिपल्स पाए जाते हैं। जॉब अवार्ड या जॉब असाइनमेंट की यूनिटी के, ताकि एक ही तरफ से जॉब असाइन की जाए और डेलीगेशन ऑफ पावर डिफाइंड हो। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट और सेपरेशन ऑफ वर्क, ये भी उसका प्रिंसिपल है। So D is the correct answer for this question. 229. What is the significance of unit of command as principle of organization? इसकी क्या इंपॉर्टेंस है यूनिट ऑफ कमांड की किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में? ऑप्शन ए एम्प्लॉयज शुड बी एबल टू वर्क इंडिपेंडेंटली, ऑप्शन बी एम्प्लॉय शुड वर्क in team unity, C employee should know to whom he or she is reporting or answerable, option D none of the above. So C जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है, employees should know to whom he or she is reporting or answerable. यूनिट ऑफ कमांड की ये एक significance है. So C is the correct answer for this question. 230. Delegation of authority as principle of organization means option A to allocate duties and responsibilities, option B to allocate funds and resources, C to allocate time, D none of the above. So delegation of authority या delegation of power का मतलब यही है कि आपने duties and responsibilities नीचे अपनी टीम में किस तरह assign की हैं. So A is the correct option. 231. By which pattern different structures of organizations can be formed? Option A number of employees, B manner of distribution of authority, C number of divisions, D type of work done. So B जो है यहाँ पे correct option है. By which pattern different structures of organizations can be formed? B is the correct answer, which is manner of distribution of authority. 232. Which of the following is a type of structure of organization? Option A line or military organization, B line and staff organization, C both A and B, D none of the above. So line organization, military organization या staff organization, तीनों इसकी types हैं organization structures की. So C is the correct option, which is A and B. 233. Which of these is not an advantage of line organization? A it permits quick decision making, it provides strong discipline, it is most effective and economical, it is a rigid and flexible. So बाकी तो इसके एडवांटेजेस हैं, जो एडवांटेज नहीं है वो लास्ट वाला है, डी इट इज rigid and inflexible. 234. Which of these are disadvantages of line organization? कौन से disadvantages हैं line organization? Option A top executives are overloaded, B system has no provision of rewarding good workers, inadequacy of communication, D all of the above. जो disadvantages हैं किसी भी line organization की वो ये तमाम है. आपकी जो top management है वो overloaded overburdened होगी, जो बेस्ट परफॉर्मर्स हैं
उनकी परफॉर्मेंस को एवल्यूएट या उनको रिवार्ड करना पॉसिबल नहीं होता या नहीं की जाती। और सी इन एडुकेसी ऑफ कम्युनिकेशन भी बेहतर अंदाज में नहीं होती। सो ये तमाम उसके डिसएडवांटेजेस हैं। सो डी इज द करेक्ट आंसर। 235. Line and staff organization is not suitable for option A, large and complex enterprise. Enterprise undertaking heavy projects. Key men needs expert advice. D, all of the above. Line और staff organization को क्यों प्रेफर नहीं किया जाता इन तमाम चीजों में? फॉर एग्जाम्पल लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स के लिए भी नहीं किया जाता। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि हैवी प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट कर रही होती हैं उसमें लाइन ऑर्गेनाइजेशन प्रेफर नहीं की जाती। की मैन जो है वो हर वक्त उनको एक्सपर्ट एडवाइस की जरूरत होती है। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन विच इज ऑल ऑफ द अबव। 236 is the advantage of line and staff organization. Option A, project can be executed with better quality. B, it provides more job opportunities. C, discipline problems are solved by line authority. D, all of the above. So ये तमाम जो है line and staff organization के advantages हैं। इसमें project execute बेहतर quality के साथ implement होता है। उसके बाद रोजगार के मौके पैदा होते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज पैदा होती हैं और डिसिप्लिन प्रॉब्लम्स जो है वो इमीडिएटली और बेहतर तरीके से सॉल्व होते हैं। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। 237 विच ऑफ दीज इज नॉट अ टाइप ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन? ऑप्शन ए मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन डी प्योर प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन। सो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जो फर्स्ट वाला है मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ये नहीं है शामिल, जबकि बाकी तमाम मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन, प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन या फंक्शनल या स्टाफ एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन ये तमाम जो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर्स हैं। 238 विच ऑफ दीज इज नॉट अ डिसएडवांटेज ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन? ऑप्शन ए कोऑर्डिनेशन इज डिफिकल्ट, बी क्वालिटी ऑफ वर्क इज enhanced, difficult to fix responsibility, D high overhead cost. So B is the correct option. It is not a disadvantage of functional organization. Quality of work is enhanced. 239 what are the advantages of matrix organization? A removes weakness of line and staff organization, B quick response to changes, C higher administrative cost, better balance between time cost and performance. So matrix organization में higher administrative cost होती है। So C is the correct option. 240 who is the key responsible person in a pure project organization? Option A project manager, B site engineer, C contractor, D structural engineer. किसी भी pure project organization में project manager जो है वो key person होता है। So A is the correct answer. Which of these is not a responsibility of project manager? Designing जो है वो इसकी option नहीं है, यहाँ पे highlight गलत हुआ है। So designing जो है वो project manager की responsibility नहीं है, जबकि planning, organization और डायरेक्टिंग जो है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। व्हिच क्वालिटीज शुड अ गुड प्रोजेक्ट मैनेजर पोजेस? लीडरशिप, इंटेग्रिटी, नॉलेज ऑफ कंस्ट्रक्शन, डी ऑल ऑफ द अबव। सो ऑल ऑफ द अबव ये तमाम उसके अंदर क्वालिटीज होनी चाहिए किसी भी पीएम के अंदर। 243 कंस्ट्रक्शन मैनेजर शुड हैव स्किल्स टेक्निकल, कंसेप्चुअल, एडेप्टेबिलिटी, ऑल ऑफ दीज। सो ये तमाम कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट की खुसूसियात हैं और उसके अंदर ये टॉप स्किल्स होनी चाहिए। टेक्निकली साउंड होना चाहिए, कंसेप्चुअली क्लियर होना चाहिए चीजों के ऊपर और एडेप्टेबिलिटी विद द न्यू सिस्टम्स एंड रिफॉर्म्स वो होना चाहिए। So D is the correct option. Which of these is not a cause of project failure? Improper planning, poor weather condition, lack of technical skills, defective structural design. So B is the correct option, poor weather conditions. Which method can be used for economic analysis of construction equipment? Option A, break-even analysis, sensitivity analysis, both A and B, D, none of these. So C is the correct option, which is both A and B. Break-even analysis as well as sensitivity analysis ये जो है methods use होते हैं economic analysis of construction equipment के लिए। 246 which method of economic analysis considers different variables for evaluation of alternative? Option A break-even analysis, B sensitivity analysis, C both A and B, D none of the above. Sensitivity analysis is the correct option, so B जो है वो correct है। Which variables are considered while evaluation of alternatives using sensitivity analysis method? जो हमने variables लेने हैं उसमें initial cost of उस equipment की, service life उसकी कितनी है और interest
रेट किसके ऊपर वो लिया जा रहा है। सेंसिटिविटी एनालिसिस में यही वेरिएबल देखे जाते हैं। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। इफ माइनर चेंजेस इन वेरिएबल्स अल्टर्स द आउटकम ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस देन सच वेरिएबल इज कॉल्ड। किसी भी वेरिएबल के अंदर स्मॉल चेंज हो लेकिन अल्टीमेटली आपका आउटकम जो है वो चेंज हो जाए कंसिडरेबली, तो उसको कहा जाता है हाईली सेंसिटिव वेरिएबल। ए इज लेस सेंसिटिव वेरिएबल, बी हाईली सेंसिटिव वेरिएबल, सी इनसेंसिटिव वेरिएबल, डी कॉम्प्लेक्स सेंसिटिव वेरिएबल। सो बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, विच इज हाईली सेंसिटिव वेरिएबल। 249 व्हेन टू वेरिएबल्स आर चेंजिंग एट सेम टाइम देन सच प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व्ड बाय फॉर्म ऑफ sensitivity analysis. Option A, spider web diagram, B, scenario analysis, C, family of curves, D, all of the above. So C is the correct option. 250. When one variable is changing, then such problems can be solved by form of sensitivity analysis. जब एक वेरिएबल चेंज हो रहा हो तो स्पाइडर वेब डायग्राम जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ए इज स्पाइडर वेब डायग्राम, बी इज सिनेरियो एनालिसिस, सी फैमिली कर्व्स, डी ऑल ऑफ द अबव। सो सिंगल वेरिएबल के वक्त स्पाइडर वेब डायग्राम, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन स्टार्टिंग फ्रॉम 226 टू 250 आपके साथ शेयर किए। दिस वाज पार्ट 10 ऑफ आवर ऑनगोइंग वीडियो सीरीज ऑन कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, और नेक्स्ट वीडियो में हम अगला पार्ट आपके साथ शेयर करेंगे। सो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।